I will discuss about the how the voltage drop is calculated in our circuit. We can take single conductor for the calculation of the voltage drop. ठीक है. As we know and learn about the network theory, basically we already know about KCL, KVL, maximum power transfer theorem, and Norton, Thevenin. Already we know about these theorem, and these theorem are used for the calculation of the voltage drop also, along with many other calculations. So now I will discuss some of calculation of the voltage drop of the conductor. ठीक है. I am sharing some slide. ठीक है. The objective to prepare electrical electronic system certificate test criteria general identify the series circuit के voltage. ठीक है. फोर्थ जो है, फोर्थ इस स्लाइड के अंदर जो फोर्थ पॉइंट है, in this point I will discuss about the how to calculate the series circuit voltage drop. ठीक है. तो हम जो है सीधे उस पॉइंट पे चलते हैं. फोर्थ ठीक है. यहाँ पे कुछ खास है नहीं, तो हम जो है दूसरा स्लाइड देखते हैं. ठीक है. ठीक है. अब जो है आप लोगों को भी पता है हाउ टू कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एनी कंडक्टर. ठीक है. अब इस वाले स्लाइड में हम जो है चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है बेसिक हम क्या यूज करते हैं. व्हाट इज मीन बाय वोल्टेज ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप से क्या समझते हैं आप लोग? An electronic voltage drop is defined as the total amount of voltage loss that happens through all and part of electric circuit due to the impedance. इम्पिडेंस की वजह से जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है या वोल्टेज लॉस होता है, ठीक है, उसको जो है हम वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं. दैट मीन्स कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट इट इज द लॉस ऑफ द वोल्टेज that happen through all part of the electric circuit due to the impedance. impedance की वजह से जो है जो वोल्टेज लॉस होता है उसको हम वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप. एंड इन ए फोर्थ यूनिट दिस इज द योर curriculum topic. This is the important topic, and the question from this topic is in a form of numerical, and in this topic I will, yeah, in a external exam point of view, numerical are very important for that. ठीक है. Are you getting the definition of the voltage drop? Basically it is the voltage loss due to the all throughout, yeah, through all part of the electric circuit due to the impedance. impedance की वजह से जो voltage loss होता है उसको हम voltage drop बोलते हैं. ठीक है. The voltage drop formula voltage drop formula, as we know that VD voltage drop is calculated by PI LR डिवाइड बाय D. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या है, वेयर I is the current load circuit, L is the cable length, R is the resistance of the
cable material, and D is the cross section area of the conductor, and P is the single phase जिसमें कि 1.732 फॉर द थ्री, ठीक है। यहाँ P का वैल्यू जो है 2 फॉर सिंगल फेज एंड 3 फेज के लिए 1.732, ठीक है ना। कैन यू राइट दिस फॉर्मूला? द वोल्टेज ड्रॉप इज कैलकुलेटेड थ्रू द this is the P, where define the P is 2 for the single phase and 1.732 for the three phase system, ठीक है। This is the current it is the current, load current, and L is the cable length, R is the resistance of the cable material, and D is the cross section area. This is the basic formula for the calculation of the voltage drop in any circuit या any conductor, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? हेलो यस हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये फार्मूला जो है फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, वोल्टेज ड्रॉप फार्मूला, क्योंकि दिस फार्मूला इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और मे बी न्यूमेरिकल मे बी आस्क सेशनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है। तो राइट दिस फार्मूला प्रॉपरली एंड लर्न देम, ठीक है। द न्यूमेरिकल मे आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक, इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। दिखाई दे रहा है? अभी फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग। हो गया? सबका हो गया? हेलो हो गया? यस सर। ठीक है, अब ऑडियो ऑफ करो। द वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेटर, easy calculator voltage drop calculator help you to calculate the voltage drop of AC oblique DC voltage in a circuit by the entering the current, load, length of the wire and material and the phase. Basically we have some of tool for the calculation of the voltage drop, and input are as follows. This is the wire length. We have to write the wire length, and this is the cross section area D, and this is the selection of copper material. We can use copper or aluminum. This is the phase selection. We can use single phase, and we can use three phase, and selection voltage may be 120, 130, 30, and 440 are the for the three phase. So this is the basic system by which we are calculating voltage drop of any circuit, any conductors, ठीक है। How to use voltage drop calculator?
this is the easycalculator.com is the website where this software is available. First of all, we have to calculate voltage drop calculator, install the voltage drop calculator, and enter the value of the initial voltage, length of the wire, cross section area of the wire. Note 1 ampere is equal to 1000 milliampere. After that, we can choose the AC or DC, which voltage type your system operate, and select the input volt. That means in this stage, we have to select uh, which type of the voltage are used, either AC or DC, and then press calculate button, and finally we have to calculate the voltage drop of the that circuit. ठीक है, and this is the reference value of the, this is the website where we can find the tool for the calculator of the voltage drop of any conductor. ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? हेलो, यस सर। सारे लोगों ने नोट कर लिया फॉर्मूला, यस सर। या फिर से मैं एक बार कर दूं, आप लोग चेक कर लो? हेलो, यस सर। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब इसको ऑफ करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए जो है, अब बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया कि किस तरह से वोल्टेज ड्रॉप जो है हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्योंकि वी मस्ट नो अबाउट द प्रैक्टिकल सिस्टम वेयर द वोल्टेज ड्रॉप इज कैलकुलेटेड। वोल्टेज ड्रॉप जो कैलकुलेशन मैंने अभी आपको सिखाया है, उस जो है कैलकुलेशन को जो हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए जो है थोड़ा सा हमको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जनरेशन सिस्टम और जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम जो है उस वोल्टेज ड्रॉप के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जो है वोल्टेज ड्रॉप जो है हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब यहाँ पे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्लाइड दिख रहा है ना आप लोगों को? सारे लोगों को स्लाइड दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ऑलरेडी मैं यहाँ तक बताया था। मैं एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक बताया था मैंने, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में यहाँ तक बताया था कि रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें कि वोल्टेज क्लासेस के बारे में मैंने बात किया हुआ था कि वोल्टेज क्लासेस क्या होते हैं, उसके रीजन क्या क्या होते हैं, और सिस्टम के अंदर जो है कहाँ पे हमारे वोल्टेज क्लासेस जो है जनरेट होते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो अभी हमने एक फार्मूला बताया, आप लोगों को फार्मूला जो बताया, वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला जो बताया था, उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने ये बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको। सबसे पहला जो कंसेप्ट था वो जो है कंटिन्यूटी, क्योंकि हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मस्ट सप्लाई पावर सप्लाई एंड मेंटेन कंटिन्यूटी मस्ट बी इंश्योर्ड, ठीक है ना। जो भी हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें सप्लाई जो है कंटिन्यू होनी चाहिए, इसमें किसी तरह कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। If we are talking about good distribution system, and voltage must not vary more than the prescribed limit. That means कि the variation of the voltage must be between plus minus 5 volt, ठीक है। That means कि we are talking about the voltage drop. If circuit having
5% plus minus voltage drop या voltage fluctuations is considered at good quality. If voltage fluctuation is beyond this limit, then the power quality decreases. And here I will discuss about the why the voltage drop is cross this limit, because due to the voltage drop of the circuit. ठीक है ना, वोल्टेज ड्रॉप मतलब सर्किट के वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो है इस लिमिट को क्रॉस कर देता है हमारा सिस्टम, तो उसमें क्या होता है, पावर क्वालिटी हमारा जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लास्ट हमने बताया था इफिशियंसी ऑफ लाइन मस्ट बी हायर एज पॉसिबल, जो कि ऑलरेडी एनर्जी कंजर्वेशन वाले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि एनर्जी जो भी हम सिस्टम यूज करते हैं वो हायर एफिशिएंसी पे ऑपरेट करते हैं। हायर एफिशिएंसी पे ऑपरेट करने का जो है फायदा ये होता है कि लॉसेस कम होते हैं। ठीक है, सेफ फॉर कंज्यूमर्स के लिए सेफ होना चाहिए। ठीक है, सेफ फॉर द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के वजह मतलब सेफ जो है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। लेआउट शुड नॉट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ लोकेलिटी। लेआउट जो है लोकेलिटी को जो है नहीं दिखाना चाहिए, लेआउट के अंदर वो लोकेलिटी को नहीं दिखाना चाहिए। अ लाइन शुड नॉट बी ओवरलोडेड और लाइन शुड नॉट बी ओवरलोडेड, दैट मीन्स कि ट्रांसमिशन लाइन इज अंडरलोडेड फॉर एनी कंडीशन, इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो हमारा टुडे डिस्कशन टॉपिक, टुडे आवर discussion topic is voltage drop. Earlier I discussed about the calculation and formula of the voltage drop. तो here I will discuss about the voltage drop. अब यहाँ पे हमको डिस्कस करना है कि वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आई विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हमको समझना वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ पे होता है। तो हमको जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जो है वी मस्ट नो वेरी वेल अबाउट ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन classified the distribution system. This is the DC distribution system, this is the AC distribution system. DC distribution system is further classified into DC 3-wire system and general distribution system. These are the two type of the DC distribution system. And if we are talking about AC transmission system having two type, ring main distribution system, radial distribution system. And we are talking about first of all we are talking about AC transmission system, and we are apply the formula of voltage drop for radial for AC distribution system, AC distribution system, and AC distribution system having if a ring main distribution system, then here I will apply for a calculation of the voltage drop. And same thing if our AC system having radial distribution system, then we have to apply calculation of the voltage drop. Similarly, if we are talking about if we have a DC distribution system, then DC distribution system has two type, DC 3-wire and general distribution system. And here we will apply voltage drop calculation and find the calculations. ठीक है, find the value of the voltage drop. Similarly, here we apply voltage drop calculation, and finally we finding the drop of a whole transmission system. ठीक है, सुनाई दे रहा है सारे लोगों को? हेलो, Yes, sir. एवरीवन गेटिंग? ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हम अप्लाई करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज द जनरल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द DC distribution system. DC distribution system having lot of advantages over AC transmission system, except
converter circuit is most मतलब more costly as compared to AC distribution system. ठीक है. अब यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं. दिस इज द जनरेटिंग स्टेशन. जनरेटिंग स्टेशन इज डीसी जनरेटर. डीसी जनरेटर आर many type, shunt DC generator, compound DC generator, and here shunt DC generator are used for generating the DC voltage and generated by the DC generator and supplied to the, this is the transmission line, and transmission line having conductor here two conductor, एक positive, second is negative. ठीक है. This is the positive terminal and this is negative, and negative terminal is connected to this line and positive terminal is connected to this line. Similarly, generator 2, this is negative terminal, this is the positive terminal. Positive terminal is connected to this line and negative terminal to this line. And this is the feeder. Feeder is here substations. Substations has DC supply, and then this is the distribution 1 and this is the distribution 2. ठीक है ना. And if we are calculating voltage drop, we apply inputs. As earlier I discussed about the tool for the calculation of voltage drop. With the help of that tools, we have to find out the voltage drop of this feeder. ठीक है. यहाँ तक समझ में आया? हेलो हेलो. हेलो. Yes, sir. ठीक है. समझ में आया ना बेटा यहाँ तक? उसमें मैंने ऑलरेडी वो फार्मूले वाले में फार्मूला लिखा है ना, आप लोगों ने सारे लोगों ने नोट किया है ना फार्मूला? Yes. Yes, sir. ठीक है. उस फार्मूले के यूज करेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे. ठीक है. अब DC 3 वायर में जो है 2 जनरेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज. ईच जनरेटर ए वोल्टेज V. Common point is neutral for a where the neutral wire run demand consumer. ठीक है. DC 3 वायर सिस्टम. DC 3 वायर सिस्टम के अंदर क्या होगा कि वी हैव सीरीज जनरेटर्स. ठीक है ना. दिस इज द जनरेटर 1 and this is generator 2 connected in a series. This is the series and this point is grounded. ठीक है. And grounded, and this terminal is taken from here and this terminal taken from here. This is the light load, a DC motor, heavy DC motor, heavy load यानी heavy DC motor are used 3 phase 1 2 and 3 वायर यूज कर. जो हेवी मोटर्स होते हैं वो हेवी मोटर्स जो है 3 वायर यूज करते हैं. डोमेस्टिक लोड जो है 2 वायर यूज होते हैं. अब यहाँ पे जो है हम फिर से कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे और वहां से जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है ना. क्या क्या हमको इनपुट करना था पहले मैंने बताया था आपको. सबसे पहले जो है हमको फेज इनपुट करना है कि सिंगल फेज है या 3 फेज है. तो सिंगल फेज के लिए जो है 2 यूज कर रहे थे और 3 फेज के लिए 1.73 यूज कर रहे थे. करंट का वैल्यू पुट कर रहे थे. फिर इसके बाद जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के बाद में वायर लेंथ. ठीक है. तो सारी चीज यूज करके जो है यहाँ पे सीधे सीधे हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. यहाँ से जो है डिफरेंट टेक्निक के थ्रू जो है करंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले अगर ड्रॉप फाइंड आउट करना है तो करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. इसके बाद में हम जो है बाकी चीजें करंट को फाइंड आउट करने के लिए KCL KVL ये सारे जो है टेक्निक हम यूज करते हैं. समझ में आ रहा है सारे लोगों को? अब देखिए हम सीधे बात करेंगे AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो है हम किस तरह से जो है वोल्टेज ड्रॉप को हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जो है हमारा देखिए ये सब स्टेशन है. ये फीडर A है. फीडर B होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है. रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये. इसको हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं. सर्विस मेन टू द कंज्यूमर. यहाँ पे लोड कनेक्ट है. यहाँ पे भी जो है लोड
सर्विस लोड कनेक्ट है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नोन, यहाँ पे सब स्टेशन है, सब स्टेशन पे जो है यहाँ पे इनकमर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली जो है सारे कंडक्टर के लिए अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हम कैलकुलेट करेंगे और उससे जो है कैलकुलेशन करके एक डेटा सेट तैयार करेंगे और उसका यूज करेंगे फर्दर, ठीक है। एक मिनट। अब जो है एडवांटेज, इट इनिशियल कास्ट इज मिनिमम, पहले इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है किस तरह से अरेंजमेंट होता है, देखिए इसका अरेंजमेंट जो है इस तरह से होता है। ये हमारा सब स्टेशन हैं, सब स्टेशन जो है इसके सब स्टेशन हैं, सब स्टेशन का कनेक्शन जो है इस तरह से है। देखिए यहाँ पे ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कनेक्ट है, बी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सी है, डी है और डी है। इसमें सबसे पहले जो है सारे इसके ब्रांचेस का कैलकुलेट कर लेते हैं, सारे ब्रांचेस का कैलकुलेट करने के बाद में रिंग का करते हैं, रिंग के बाद में फाइनल इसका करके जो है फाइनलाइज करते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप को, ठीक है। ठीक है, अब एक शॉर्ट नोट बना लीजिए आप सारे लोग जितना अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपको जो है 5 मिनट का टाइम देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे और आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करेंगे, ठीक है। समझ में आया?